This is Facts Are Here. Welcome you all to Study from Home. How are you all, my dear students? I just hope you all are fit and fine, right? So, without wasting much of our time, let's start with Class 5 EVS with a new chapter, chapter number 16. Who will do this work? So, as we can see, the question is been asked at the title. So similarly, in whole chapter, most of the places where questions have been asked, right? So we will learn such things by asking a questions or by giving the answer of question. So let's start with the first question. Have you seen such scenes around you, right? So here you can see in the picture, right? Then different or multiple work is doing by the person. Now, in first part you can see a person or a man is doing a garbage cleaning work. In second picture you can see a person cleaning the floor after the floods. And here you can see, right, a multiple people or multiple person, right, doing drainage cleaning work. As well as here also you can see a couple, right, is collecting a garbage with them, right. So all over in this picture we can see that persons are doing the garbage cleaning or drainage cleaning work. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सर्टेन कम्युनिटी या फिर एक सर्टेन पर्सन या फिर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल ही ये सारा वर्क क्या करते हैं सो अगेन एज आई हैव टोल्ड दैट इन दिस चैप्टर मोस्टली we have been asked a question. By answering such questions we will come to know about that what actually this chapters wants to tell us, right? So let's see. Have you ever thought of people who do this work? What is our responsibility to keep the place clean? यानी जैसा कि यहाँ पे ये पिक्चर में जैसा अभी हमने देखा दैट कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है या फिर कहीं कहीं पे कुछ पीपल है, पर्सन है, मैन है या फिर कपल है, वो कहीं पे ड्रेनेज को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं. कोई है जो गार्बेज को कलेक्ट करके वहाँ किसी दूसरी जगह पे क्या करने के लिए जा रहे हैं, थ्रो करने के लिए जा रहे हैं. आफ्टर द फ्लड सम पर्सन्स डूइंग सम क्लीनिंग वर्क. सो कभी आपने देखा है दैट कि यहाँ पे कौन से लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं. देन वी कैन से दैट सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, मोस्टली हु वर्क और हु आर poor, who are uneducated, right, and who are belong to some certain group of society, right, are doing such work. Now what is our responsibility to keep the place clean, right? So as being a factor or as being the person who are living in this society, तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट कि हम जहाँ कहीं पे भी रह रहे हैं वहाँ पे आसपास पे या फिर जिस जगह पे रह रहे हैं वो सारा का सारा जो सराउंडिंग एरिया है वो क्या रखे, क्लीन रखे. नॉट जस्ट ओनली फॉर टू हेल्प सच पीपल, राइट, बट ऑल्सो टू हेल्प आवर ओन सेल्फ. क्योंकि लिटरली जहाँ पे यानी ऐसी जगह है, गार्बेजेस पड़े हुए हैं, राइट, वहाँ से स्मेल आती रहती है एंड समहाउ इट विल स्प्रेड लॉट्स ऑफ डिजीज, आई कैन से, राइट. सो वही एक रीज़न भी बनता है काफ़ी सारी डिजीज को स्प्रेड करने के लिए भी. सो नॉट जस्ट ओनली टू हेल्प सच पर्सन, यानी इन लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं, लेकिन हमारी खुद की हेल्प करने के लिए भी हमें हमारा जो सराउंडिंग एरिया है वो क्या करना पड़ेगा, साफ सुथरा रखना पड़ेगा. एज ऑलरेडी इन द previous chapter we have talked about treat for the mosquitoes, right, where we have talked about that mosquito carries disease from place to place as well as where they sit and which are the familiar places where they lay their eggs, right, such things. So such things happen only and only at the places where such smashy area are there, right, कि जहाँ पे गंदगी बहुत होती है, right,
मॉइस्चर एरिया ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो पानी हुआ होता है वो स्टेगनेंट हो जाता है, राइट, गंदा हो जाता है, पॉल्यूटेड एरिया होता है। सो अब ये होगा कैसे, दैट कि वहाँ पे अगर क्लीनिंग ना होगी तभी होगा, अंडरस्टैंड नाउ। सो व्हाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, राइट। सो अगेन मैं यहाँ पे आपको पिक्चर पे ले जाना चाहूँगा, राइट, वेयर वी विल टॉक ना। सो जो क्वेश्चन पूछा है देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं वो लोग क्यों ये सिर्फ यही काम करते हैं, राइट, क्यों ये लोग दूसरा कुछ और काम करते नहीं है। देन जस्ट इमेजिन कि आप अपनी तरफ से सोचो दैट कि क्यों ये लोग यही काम कर रहे हैं, राइट। क्या इनको यानी ये इच्छा नहीं होती, क्या ये इनकी यानी एक ख्वाहिश नहीं होती दैट कि ये भी यानी पढ़े लिखे बड़े आदमी बने और अच्छा रिस्पेक्टफुल जॉब करे, होती है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पॉवर्टी एज वेल एज एंड देन लेक ऑफ एजुकेशन, राइट, यानी एक तो वो बहुत ही गरीब होते हैं, दूसरी बात ये है दैट कि वो इतना एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, सो द रीजन वाई उनको क्या करना पड़ता है, ये काम ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड बिकॉज ऑफ एजुकेशन वो सिर्फ सर्टेन ग्रेड्स तक यानी सर्टेन क्लासेस तक ही उनकी क्या होगी, पढ़ाई होगी, उसके बाद वो आगे पढ़ाई कर सकते नहीं है। और कुछ ऐसे यानी इन्हीं में से कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन ऐसे यानी जो पहले का यानी बहुत पहले की बात करें तो ऐसा था जब कि वो तो बिल्कुल स्कूल ही जाते नहीं थे। बट नाउअडेज एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट, राइट, यानी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो अब तो ये भी हुआ है दैट कि ये जो स्वीपर है, ड्रेनेज क्लीनर है, गार्बेज क्लीनर है, इनके बच्चे भी अभी क्या कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं, एज वेल एज वो आज एग्जाम्पल भी क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं टू बिकम आफ्टर बिकमिंग एन IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर। देयर मल्टीपल यानी हम एग्जाम्पल नाउअडेज सोसाइटी में देख सकते हैं। अभी रिसेंटली यानी एक रेलवे कॉलोनी में रहने वाली एक स्वीपर की जो लड़की है, उन्होंने अभी यानी IAS या फिर IPS का एग्जाम भी क्या किया है, पास किया है। And also I can say that the society in which we are living, then certain group of people literally force certain group of people to do this work. यानी कुछ एक ऐसा भी है that कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे कुछ एक certain group of people है, राइट, वो ऐसे लोगों को लिटरली क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं या फिर इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं दैट कि उनको ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है। नाउ सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Our friends spoke to some staff who do cleaning jobs. Here are some of the things they told us. यानी हमारे जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, देन जो फ्रेंड्स होते हैं उनको कुछ क्यूरियोसिटी हुई ये सारा का सारा वर्क देख के, तो जो क्लीनिंग जॉब कर रहे हैं उनके साथ वो क्या करने के लिए जा रहे हैं, बातें करने के लिए जा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन वो जो क्लीनिंग वर्कर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। Then let me see that which questions they have been they have been asked. Question number 1, since when have you been doing this work? यानी वो जो क्लीनिंग जॉब कर रहे हैं उनको पूछा जा रहा है कि आप कब से ये वर्क कर रहे हैं, यानी जो ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन करना है, गार्बेज को क्लीन करना है, वो सारा का सारा वो कब से कर रहे हैं। Then answer they get about 20 years since I completed my study, यानी जब से मैंने मेरी स्टडी को क्या किया है, कंप्लीट किया है, उसके बाद से मैं सिर्फ और सिर्फ ये क्लीनिंग का ही वर्क क्या कर रहा हूँ, आगे कर रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, why did you not study further? You could have got some other job. तो आप जो स्टडी कर रहे थे तो आपने फर्दर स्टडी क्यों नहीं किया, राइट। देन दे वर से क्योंकि अगर आप स्टडी करते तो हो सकता था दैट कि आपको एक रिस्पेक्टफुल जॉब मिल सकती थी। नाउ सो आंसर दे गेट यू नीड मनी फॉर स्टडीज, यानी स्टडी करने के लिए तो किसकी ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, और वही हमारे पास नहीं थे। And even after that, most of our people continue to do this kind of
वर्क। लेकिन कुछ ऐसा भी पाया गया है दैट कि अगर हम क्या कर लेते हैं, स्टडी कर भी लेते हैं और बिकॉज ऑफ पॉवर्टी हमें क्या करना पड़ता है, स्टडी को लीव करना पड़ता है। एंड सो द रीज़न वाई जो हमारे ग्रुप के जो पीपल है वो क्या काम करते हैं, यही क्लीनिंग वाला काम करते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन, यानी इसका क्या मतलब है, राइट। तो यानी उन्होंने बोला दैट कि हम स्टडी आगे करें भी, लेकिन स्टडी करने के बाद भी हमें क्या नहीं मिलता है, वो जॉब नहीं मिलता है जो हमें चाहिए। सो द रीजन व्हाई द क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड दैट व्हाट डू यू मीन, सिंस आवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स टाइम्स और इवन बिफोर दैट मोस्ट पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क। यानी हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर यानी जो ग्रैंडफादर होते हैं उनके भी फादर और उनके भी फादर, या फिर उससे भी पहले की बात करें तो वो लोग भी क्या काम करते थे, यही क्लीनिंग वर्क एंड गार्बेज एंड ड्रेनेज क्लीनिंग, यही सारा वर्क वो लोग करते थे। अब होता क्या है उससे, इवन आफ्टर गेटिंग अ कॉलेज डिग्री, अगर ऐसा होता है कि हमारे जो कम्युनिटी में से अगर कोई कॉलेज की डिग्री को क्या कर लेता, पास आउट कर लेता, यानी ग्रेजुएट भी हो जाता, फिर भी आर पीपल डू नॉट गेट एनी अदर काइंड ऑफ जॉब। तो हमारी जो कम्युनिटी के लोग होते उनको कहाँ पे नहीं रखा जाता था, वो जॉब के ऊपर रखा जाता नहीं था ना। सो दे हैव टू डू दिस वर्क, और यही एक रीज़न है दैट कि स्टडी करने के बाद भी हमें क्या करना पड़ता है, ये वर्क करना पड़ रहा है। सो व्हाई इज दैट सो, ऐसा क्यों, राइट। तो वो कह रहे हैं कि दैट इज द वे इट इज, तो ये तो वैसा ही है, ये तो चलता ही रहता है। देन यहाँ पे मैं एक मरतबा फिर से रिपीट करना चाहूँगा, द लास्ट थिंग आई हैव टोल्ड दैट के जो सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल है या फिर सर्टेन ग्रुप ऑफ जो कम्युनिटी है वो एक सर्टेन कम्युनिटी को क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं ताकि वो यही काम करते रहे, यानी उनको एज अ सर्वेंट ही क्या किया जाता है, समझा जाता है ना। सो in this entire city all the people who do this kind of work are from our community, it has always been so। so इसका सीधे सीधे ये है दैट कि ये जो क्लीनिंग का जितना भी वर्क है वो इसी तरीके से है दैट कि सारा का सारा जितना भी जहाँ पे भी आप देखो दैट कि क्लीनिंग वर्क हो रहा है तो वहाँ पे सब के सब किसकी कम्युनिटी के मिलेंगे, हमारी ही कम्युनिटी के मिलेंगे, राइट। So on the basis of this question answer, here also one point is right. Talk with people who do the cleaning job around your house and school, right? So ये आप पूछ सकते हो आपके नियर बाय जो लोग हैं जो कौन सा वर्क कर रहे हैं, क्लीनिंग जॉब कर रहे हैं, उनको since when have they been doing this work, वो कब से इस काम को क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। How much have they studied, वो कितना पढ़े लिखे हैं। Have they tried to look for some other work, क्या उन्होंने भी यानी दूसरा वर्क करने की ट्राई की है। Did the elders in their family also do this work, क्या उनकी यानी फैमिली में भी जो बड़े बुजुर्ग थे या फिर उनसे पहले जो ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो भी यही काम करते थे या नहीं, राइट। एंड व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क, और कौन कौन से डिफिकल्टीज उनको क्या करनी पड़ रही है, फेस करनी पड़ रही है ये सारा वर्क करने के लिए। सो आई जस्ट वांट टू आंसर फ्रॉम योर साइड, राइट, ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। Afterwards in next video I will give my answer to these questions, right? So till then take care of yourself, right? Thank you very much and have a nice day.